Hello everyone. I'm really sorry that I could not upload the videos earlier in the past few days. It was because of bad health and other issues going on. So I thought that I'll do that. Like once I'll be fine, I'll be able to produce better quality videos. And I was also arranging for a mic so that you can have a better voice, and just let me know if my voice is clear right now in this video, because in the earlier videos I know it was not that good, so I've tried to improve on that. Okay, so let's talk about this bill, that is 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. इसके बारे में अभी काफ़ी बातचीत चल रही है. ये न्यू बिल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है. सो व्हाट इज़ दिस बिल? देखो, आपको पता है इंडियन पॉलिटिक्स में जब हम बात करते हैं, वी ऑलवेज टॉक अबाउट कि इंडियन पॉलिटिक्स इज़ मोर लाइक गंदी पॉलिटिक्स. हम जनरली कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स एक गंदी जगह है. तो व्हाट डज इट मीन बाय दैट? इट मीन्स लाइक people feel that the right people are not there. There is a lot of dirty politics happening and all. So why that dirty politics as well? There comes a point of criminalization of politics, because a lot of criminals are joining politics. That is, people with criminal background are taking up official positions. As per ADR data, 46% of member of parliament had declared criminal charges against them. This is regarding the present election, that is recent election, that is 2024. उससे पहले this data was 43%. So it means there is a jump, there is an even increase, and this is continuously rising. 1-2-3 साल का डेटा अगर आप देखोगे, so this criminalization is continuously rising. So in this regard, that is to control this criminalization of politics, government has come up with this bill, that is 130th Constitutional Amendment Bill. Because criminalization of politics undermines the principle of fairness as well as stability of governance. So there is a need of a certain kind of law which can control over this phenomena. So let's see that what this bill is. So देखो, under this bill, ministers, chief minister and even prime ministers must either resign or automatically be subject to removal if they continue to be in custody even after consecutive period of 30 days in crime that carry a maximum punishment of 5 years. जिसका punishment 5 years or more है, 5 years or more of imprisonment. अगर ये punishment किसी crime का है, then after 30 days, after 30 days you will be removed or you will yourself have to resign. So जैसा कि यहाँ पे लिखा है, this is to enable cleaner politics. So apart from that, there are आपको पता है आर्टिकल 75, आर्टिकल 164 to 39A जो हैं, these article deals with appointment and tenure of ministers. और इसमें बताया गया है that pleasure of president पे जो है ministers hold their offices. और ये जो pleasure of president है ना, this has been judicially interpreted time and again within the bounds of constitutional morality. कि ये जो pleasure of president है, ये ऐसे ही नहीं कि बस आप remove कर दो. This should be on the basis of constitutional morality. तो constitutional morality आपको पता होगा. और ये question, इसके ऊपर question पूछा गया है कई बार, I think 2-3 बार question पूछा गया है, और शायद इस बार भी 2025 में इसके ऊपर question आया, as much as I remember. मैंने अभी पेपर देखा था. तो yes, जस्ट आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पता होना चाहिए क्या होता है, और इसके ऊपर आपके प्रॉपर नोट्स रेडी होने चाहिए, क्योंकि 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है. ठीक है, सो हम आगे चलते हैं. सो नबम अरेबिया केस में एंड शमशेर सिंह केस में ये ऑलरेडी बोला गया है दैट दिस प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट जो है दैट शुड बी इन अलाइंस, दैट शुड बी इन लाइन विद कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी.
दैट इज़ एथिकल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होना चाहिए, नॉट कि आप अब्रप्ट कुछ भी डिसीजंस ले रहे हो एज ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। देन अंडर SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने अंडरस्कोर किया था दैट रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एज गाइडिंग प्रिंसिपल, thus pronouncing that democratic institutions must be nurtured through integrity and accountability. In Manoj Narula case also, Supreme Court addressed the ethical dimension of ministerial appointments, warning that individuals with serious criminal charges should not be entrusted. तो मनोज नरूला केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दैट एनी इंडिविजुअल जिसके ऊपर कोई भी सीरियस क्रिमिनल चार्ज लगाए, दे शुड नॉट बी गिवन एनी एग्जीक्यूटिव पावर। तो ये इस जजमेंट में कहा था, लेकिन आपको वो जजमेंट से समझ आ रहा होगा, इट इज़ नॉट सेइंग जैसे कि बिल कह रहा है रिगार्डिंग रिमूवल, राइट। हम रिमूवल करने की बात करें कि अपॉइंट कर दिया गया है उसके बाद रिमूवल, तो ये चीज़ इन्होंने नहीं की। इन्होंने अपने आप को सीमित रखा कि आप अपॉइंट ही मत करो ऐसे लोगों को। तो उस रिगार्डिंग ये आपका इस जजमेंट में कहा गया था। रादर बिल इज़ टॉकिंग अबाउट रिमूवल वंस इट हैज़ बीन डन। द बिल देयरफॉर ड्रॉज स्ट्रेंथ फ्रॉम दीज प्रोनाउंसमेंट्स seeking to give legislative form to what has long been judicially recognized moral imperative। तो बिल उसी को कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ये जो टाइम एंड अगेन जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हुए हैं जहाँ पे क्रिमिनलाइजेशन को रिड्यूस करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात की गई है, देन नॉट अपॉइंटिंग मिनिस्टर्स विद क्रिमिनल चार्जेस की बात की गई है, तो उसी के रिगार्डिंग है। बट फिर हम कहते हैं कि भाई ठीक है, ये सब तो ठीक है, लेकिन बिल में एक इशू क्या है? इशू है कि गिल्टी बिफोर प्रूवन, मतलब आप इनको प्रूव होने से पहले ही गिल्टी मान रहे हो, मतलब गिल्टी मान रहे हो, ठीक है। वो गिल्टी अभी तक प्रूव नहीं हुआ है लेकिन आप मान रहे हो, 30 डेज़ के जस्ट बाद आप उन्हें रिमूव कर दे रहे हो बिफोर एनी कन्विक्शन एंड ऑल। तो वो जो है दैट गोज़ अगेंस्ट आर्टिकल 21 जहाँ पे प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस होता है, दैट इज़ इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। ये हमारा हम प्रोविज़न फॉलो करते हैं, दैट इज़ इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। बट यहाँ पे हम क्या फॉलो कर रहे हैं, दैट पहले से ही हम गिल्टी मान रहे हैं, और वी आर इवन नॉट जस्ट गिल्टी मान रहे हैं, वी आर इवन रिमूविंग दैट पर्सन फ्रॉम द ऑफिस। ओके, दो देर इज़ अ प्रोविज़न कि इफ़ आफ्टर फर्दर प्रोसीडिंग्स the person is not convicted, then there is provision of reappointment, but if like initially तो उन्हें guilty मान लिया गया ना, so that is also a damage which is being done। so उसके regarding there is an issue कि this should not be the way। आप इस हमारे जो constitutional जो presumption है उसके against जा रहे हैं, that is under article 21। तो कह सकते हैं article 21 के against जा रहे हैं basically। And if we are just removing on the basis of detention or arrest without being formally convicted, then it is basically जैसा कि हमने कहा goes against constitutional morality as well, ठीक है। तो ये भी इनका पॉइंट है अगेंस्ट में इस बिल के। देन सी, आपको पता होगा सेक्शन 8 क्लॉज 3 ऑफ RP जो है ये डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स के ऊपर बात करता है, बट इट टॉक्स अबाउट वो मतलब डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स किनका, ऑब्वियसली जो जिनका कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड है एंड चार्जेस उनके ऊपर लगे हैं, बट दिस टॉक्स अबाउट कि आफ्टर कन्विक्शन वंस द पर्सन हैज़ बीन कन्विक्टेड दे विल बी चार्ज अंडर दिस सेक्शन। अब इसमें लिली थॉमस केस के अंडर, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, इट वाज हेल्ड दैट ओनली आफ्टर कन्विक्शन द पर्सन विल बी इमीडिएटली रिमूव्ड। अगर एक बार कन्विक्शन हो गया तो उन्हें इमीडिएटली रिमूव किया जाएगा। पहले क्या था, देयर वाज अ 3 मंथ विंडो हुआ करता था, और उसकी मतलब जैसे मान लो उन्हें कन्विक्ट किया गया, उसके बाद 3 महीने की एक विंडो होती थी जिसमें वो अपील कर सकते हैं फर्दर, ठीक है, इन फर्दर कोर्ट्स। वाइल अभी यह है कि जैसे ही कन्विक्शन हुआ अब आप इमीडिएटली रिमूव हो जाओगे। अब देयर इज़ नो प्रोविजन ऑफ दैट 3 मंथ्स विंडो, बिकॉज अदरवाइज़ वो फर्दर जो हमारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं उनके अगेंस्ट आता है, इट अंडरमाइंस दैट। आप कितना चांस दोगे ना किसी को, आपने कन्विक्शन भी हो गया उसके बाद भी आप मना कर रहे हो, तो दैट वाज टू फार।
So that's why this provision was removed and under लिली थॉमस केस. So ये लिली थॉमस केस आपको पता होना चाहिए. तो जैसा कि हमने अभी अभी पॉइंट आउट किया, इट इज़ व्हेन कन्विक्शन इज डन. जबकि इस बिल में क्या बात हो रही है, जस्ट आफ्टर अरेस्ट और डिटेंशन, तभी हम जो है रिमूव कर दे रहे हैं उन्हें, नॉट आफ्टर कन्विक्शन. वो देवर ऑलवेज डिमांड्स कि कन्विक्शन पे नहीं, कन्विक्शन होने पे नहीं, जस्ट चार्जेस अगर फाइल हुए तभी उनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए. ऐसा भी प्रोविजंस थे पहले से कि भाई आपको ऐसा बिल इसलिए लाना पड़ेगा और इसीलिए गवर्नमेंट ऐसा कुछ बिल लेके आई है, बिकॉज देयर वर डिमांड. विदाउट डिमांड देयर इज़ नो सप्लाई. यू अंडरस्टैंड द फैक्ट, राइट? बट what is the framework of the bill, how they have introduced the bill, that matters. We have to be aware of कि भाई बिल में क्या क्या प्रोविजंस हैं. क्या गवर्नमेंट कुछ अपने फ़ायदे के लिए तो बिल को नहीं लेके आ रही है, जस्ट टू मेक फॉर देयर ओन, जस्ट टू मिस यूज़. समटाइम्स होता है ना, गवर्नमेंट ब्रिंग्स अप द बिल, उसमें कुछ प्रोविजंस होंगे ऑब्वियसली अच्छे, लेकिन वो मिस यूज़ करने के लिए हिसाब से एक ऐसा प्रोविज़न डाल देंगे विच एंड्स अप गोज़ अगेंस्ट द ऑपोजिशन और समथिंग. तो इसमें भी वही है कि मिसयूज़ हो सकता है बिल का, मिसयूज़ अगेंस्ट द ऑपोजिशन पार्टीज़, जहाँ पे आप उनको फोर्स कर देते हैं रिज़ाइन करने के लिए जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिटेंशन. अब इसमें एक और ये चीज़ है कि लेजिस्लेचर वर्सेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. तो अब इसमें इसकी बात की गई है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो इनके लिए वो प्रोविज़न नहीं है. So there is kind of asymmetry है बिल में, because the legislature can still continue until disqualified under the act. ठीक है, तो ये है. जबकि मिनिस्टर विल बी फोर्स्ड टू रिमूव और फोर्स्ड टू रिज़ाइन. तो इसलिए इसमें डिस्क्रिपेंसी कही गई है कि भाई मिसयूज़ भी हो सकता है. तो दीज आर द इशूज़ रिगार्डिंग द बिल. जैसा कि हमने ये वाला आर्टिकल 21 के अगेंस्ट, तो आपको ध्यान में रखना है व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन विच बिल इज़ बीइंग क्रिटिसाइज. तो दीज आर द पॉइंट्स. ठीक है, तो काइंड ऑफ ये पॉलिटिसाइज कर रहा है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल को. जैसा कि हमने कहा मिसयूज़ किया जा सकता है. तो हो सकता है कि भाई वो अपने पार्टी के जो लोग हैं उनको, जैसे गवर्नमेंट जो रूलिंग गवर्नमेंट है, दे विल प्रोटेक्ट देयर पीपल बट दे विल टेक स्टर्न एक्शन अगेंस्ट द ऑपोजिशन मेंबर्स. उनको तो फोर्स किया जाएगा रिमूव करने के लिए, बट उनको शायद ना किया जाए, राइट? तो वो इस तरीके से, एक तरीके से अपने प्रॉफिट के लिए वो इस बिल को यूज़ कर सकते हैं और उसे मिस यूज़ कर सकते हैं. एंड इट इज़ बीइंग ऑल्सो सेट, जैसा कि हमने कहा लेजिस्लेचर्स पे सेम चीज़ अप्लाई नहीं हो रही है, तो मतलब इस तरीके का फोर्स रिमूवल नहीं हो रहा. तो इट विल रिस्क डिटर कैपेबल इंडिविजुअल्स from accepting ministerial responsibility, knowing that they can face harsher punishments like this. Then there is also the problem of revolving door, because the bill allows reappointment. Once a minister is released from the custody, there could be cycles of resignation and reinstatements depending on the place or legal proceedings. तो ये चीज़ है कि भाई एक बार आपने उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, फिर उनको आपने फिर से रीइंस्टेट कर दिया. तो इस तरीके की चीज़ें मान लो अब काफ़ी लोगों के केसेस ऐसी चीज़ें आएंगी. 46% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु हैव सच काइंड ऑफ चार्जेस अगेंस्ट देम. तो फिर व्हाट विल इट लीड टू? इट मे लीड टू अनसर्टेनिटी ना, इट मे लीड टू इंस्टेबिलिटी इन द गवर्नमेंट. तो वो सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज इट विल वीकन द गवर्नेंस एज वेल. गुड गवर्नेंस के अगेंस्ट चला जाएगा ये, तो फिर है ना, हम पढ़ते हैं गुड गवर्नेंस. तो यही इस बिल में कहा गया है भाई, फिर आप ऐसा सब कर तो रहे हो, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ द गवर्नेंस पार्ट एज वेल. यू हैव टू टेक केयर ऑफ द व्हाट टू से, या स्टेबल गवर्नमेंट एज वेल, राइट? यू आर द गवर्नमेंट एंड यू हैव टू वर्क फॉर द वेलफेयर. हमारा वेलफेयर की बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी. आप बिल ला रहे हो, क्लीन करने की कोशिश कर रहे हो पॉलिटिक्स को, गुड, बट we should not pay the cost for that in terms of instability and weak governance due to such kind of situation being created, right? So there is no doubt कि we need a bill to deal with this problem of criminalization, but we need a nuanced bill. We need an improved bill, modified bill, where the provisions can be modified
जैसे कि इस आर्टिकल में सजेस्ट किया गया है दैट removal should not be linked to arrest but instead to judicial milestones such as framing of charges by a competent court. I'm sorry, my tab is not working well, I think. I am so sorry, due to some issues I had to मेरा वो जो सारा highlighted material था that is lost. So कोई बात नहीं, वैसे भी थोड़ा ही बचा है ये आर्टिकल, so let's discuss with it from here. सो यहाँ पे हमने कहा था दैट वी कैन हैव काइंड ऑफ जुडिशियल काइंड ऑफ थिंग हो सकता है जहाँ पे फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट चार्जेस फ्रेम करें. दिस वुड इंश्योर दैट ओनली केसेस जो कि इनिशियल जुडिशियल स्क्रूटिनी को पास करते हैं that triggers in resignation because of that judicial scrutiny only उनको आप आगे कह सकते हैं रिमूवल और वो वाला जो प्रोसेस है पूरा वो तभी फॉलो हो जब ये वाला फर्स्ट स्टेप फॉलो किया जाए और उसके अंडर इनको अपहिल्ड मतलब लाइबल माना जाए उस फॉर दैट मतलब उनका चार्ज जो एक तरीके से अपहिल्ड किया जाए. अनदर सेफ गार्ड दैन इन्होंने कहा है कुड बी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट रिव्यू मैकेनिज्म इस्टेब्लिश कर सकते हो जैसे कि ट्राइब्यूनल या जुडिशियल पैनल. दैट विल वो क्या करेगा वो एग्जामिन करेगा कंडीशंस फॉर रिमूवल हैज़ बीन मेट और नॉट, तो वो आप कर सकते हो. उसके अलावा इन्होंने कहा है इंस्टेड ऑफ आउटराइट रिमूवल द लॉ कुड बी प्रोवाइडेड फॉर इंटरिम सस्पेंशन ऑफ मिनिस्टीरियल फंक्शंस ड्यूरिंग द ऑनगोइंग ट्रायल्स. तो इंटरिम सस्पेंशन वाला आप प्रोविजन अलाउ कर सकते हो फॉलो अलाउइंग गवर्नेंस टू कंटिन्यू विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग अकाउंटेबिलिटी, तो वो वाली चीज़ डील हो जाएगी इससे. And then most importantly, bill should refine its scope to apply only to offences involving moral turpitude and corruption rather than casting a wide net over any offence punishable with 5 years. तो ये कह रहे हैं सारे ऑफेंस को आप इंक्लूड मत करो, यू इंक्लूड क्योंकि हम क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स और करप्शन एंड ऑल उसमें जो मेजर पार्ट आता है मॉरल टर्पिट्यूड एंड करप्शन उसको आप मेजरली डील कर लो. क्योंकि अगर आप सारे ही अगर आप सारे ऑफेंसेस के साथ डील करोगे विच आर लाइक 5 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट वाले तो मिसयूज़ का जो एक एरेना है वो बढ़ जाता है, आप इसको वहाँ पे मिसयूज़ करने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो ये एक सजेशन इन्होंने दिया है. तो फाइनली इट सेज दैट वी नीड टू बैलेंस बिटवीन डिमांड्स और एथिकल गवर्नेंस एंड डेमोक्रेटिक डिलीवरेंस ऑफ जस्टिस. दोनों ही चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा. यू कैन नॉट फोकस कि बस एथिकल गवर्नेंस चाहिए तो हम कुछ भी बिल ला के उसे बस कैसे भी वो कर दें इंट्रोड्यूस कर दें. इट कैन नॉट बी लाइक दैट. यू हैव टू हैव दैट बैलेंस ऑफ डेमोक्रेटिक डिलीवरेंस ऑफ जस्टिस एज वेल. जो भी आप बिल ला रहे हो वो डेमोक्रेटिक वे में तो होना चाहिए ना. इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, सो यू नीड टू इंट्रोड्यूस बिल्स ऑल्सो इन द डेमोक्रेटिक मैनर एज वेल एज द प्रोविजंस मस्ट बी इन लाइन विद डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स. कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के लाइन पर होना चाहिए, राइट. सो फाइनली ये आर्टिकल को इन्होंने एंड किया है, इसको आप यूज़ भी कर सकते हो. इस कोट से इन्होंने एंड किया है दैट इन द लॉन्ग रन पावर विदाउट इंटीग्रिटी corrodes democracy and integrity without fairness endangers democracy. This is a good quote which can be used. So that is it for this article. I just wanted to explain about this bill because this is in news since long, like काफ़ी दिन हो गए हैं. So yes, I hope that you are able to understand what is the bill, what are the provisions and what are the issues in this bill. And if you want more such videos like this, you can subscribe my channel and like my video if you like it. Thank you so much.